देखो कॉन्वोकेशन के लिए अगर आते हैं तो अब एक एक अलग से ट्रीट जानी चाहिए मनोज जी के लिए। मेरे से तो पक्का, मैं तो उन्हीं के हाँ हाँ, पास हुई हूँ। एक एक मोमेंटो और समथिंग, आई डोंट नो। नहीं, कॉन्वोकेशन के बाद क्या करेंगे, वी विल अरेंज अनदर कॉन्वोकेशन विद इन आवर सो हाँ जी, और इनके थ्रू वो डिग्री फिर से अब दे विल। तो how will you कैसे करना है बताइए। should I quickly cover the theory problem or how you want to do हाँ, it? पहले थ्योरी करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स। पहले थ्योरी तो समझ चुका, मतलब फॉर्मूला भी कवर कर चुकी हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स। So मैं काम करता हूँ, पूरा कवर कर लेता हूँ 30 पर थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, जहाँ पे आपका रुकना होगा तो बताइए। श्योर सर। समय आई एम ऑडिबल राइट? या you're audible sir. Hi Swanand. Hello, hello. Yes, I Okay. Shem is also traveling. She used to be. Sorry? Shem is also traveling. She was. हाँ Look good. yeah. नहीं, शी आवाज नहीं आ रहा है हाँ शिव अब आवाज़ नहीं आ रही। मोबाइल। Hi, Swanan. मेरा problem Okay. So just let me know once you are able का to voice. green. मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं? यस यस आपका क्लियर है मनोज जी। Audible now? Yes. 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 Thank God. Now it's connected to the car also. Hi everyone. Sorry, I was somewhere in mess. I will not disturb now. Manoj ji, please go ahead. Yeah. So quickly I'll take you to the theory. क्या क्या आ सकता है? So one is that the first example what is given is on जॉन डियर। John Deere inventory management. He has given two examples. One is Samsung and second one is Apple, right? So both them have a different inventory management side, right? The Apple, because most of the things are outsourced, so they don't have launch any point of time to more than 2 to 3 quarters. Samsung, they launch multiple products, but also they try to do the product differentiation, so that the product differentiation is probably 300 rupees of cost differentiation, but the charge around 3000 rupees. So it's called as consumer surplus. अगर आपका ये नोट में मैं हाईलाइट किया हूँ येलो में, so that you can see that is one thing. Second is that Intel का example था. So there's a COVID में when they have quite focused on the subsidy, right? So manufacturing everything was centralized. So that helped. That was actually issue for them. So in COVID, after COVID, they realized that only cost saving may not be enough, but also they may have to diversify. So that's the message here. Same third example was Starbucks. Starbucks में both in COVID their demand and supply suffered. So on supply demand side they are able to tie up with Uber Go and they are able to match the demand, but there is supply question. So all these things actually shows even if you have to diversify, it's only that cost efficiency may not be enough, but also you have to diversify your supply chain. So that's the example they have given. Second, whole operational management focus on three things. One is design, management, and improve. So you have to design your how to want to design your operation. Second is that to manage it properly, and here is a continuous improvement process. So every system, like in the right hand side, they have given 4 examples. One is petrochemical, second one is hospitality, third one is your service sector, and fourth one is your insurance lane. So the efficiency, so left side is the action what the company is taking or organization is taking. The right side is what is actually how they are monitoring or measuring their efficiency. So for petrochemical, it may be less production loss, less lead time. For service, it may be less lead time, like a hospital, how quickly they are able to serve the consumer. And for other service like Domino's, the example. So there is a cost to deliver faster. So all those things has to be depending on organizations' capability, depending on their aspiration, that has to be managed. The last is that all operational efficiency depends on 5 major factors. One is that capacity. So if you want to go for a make to measure or on customers' demand, so it's a customized kind of thing, then you need a higher capacity, right? And the efficiency is if you want to play more on like your FMCG product, it's like available to sell. So then you have to make your product available everywhere. So there you have to do cost optimization, have to deliver the lower cost. Second is the quality. So quality is more into customization. Speed is how far you want to, how quickly you want to deliver. And the flexibility. So flexibility comes, the one example is the Dell example. So they are trying to be more flexible. Whatever consumer want, they are able to they put in such a way, consumer get whatever they need,
they also optimize their inventory by having it in a different, not configured everything, but they have it like a RAM. They can add it or they can use it in multiple laptops. So here, out of this 5 more capability or 5 more areas what companies look at, so they may target to give a result of either it's a low price, faster service, or customization. So 3 outputs depending on what each your business model, you can work on these 3 models. So here it's given what is the how the process works. So यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहा था कभी कभी आ सकता है कि प्रोसेस का आपका कैसे होता है, define process, then design your process. So those are the flow probably that may come in the question. So this is what he has defined. Second, the last page on the first on the introduction. So if you see the graph, x, y axis is your standardization and your x axis is your volume. So when you go for a high standardization, definitely your focus can't be your volume, like your project. So in that case, so this is also a multiple question I was looking at. So when your focus is more on a standardization for a limited period, so here is a project. So likewise, he has come into, so the volume increases, the standardization decreases, so more it's a mass product, then your volume can be go up. So all those 3 here, right? So either your focus can be value, volume, variety, like Samsung, or the variation. If it is a seasonal industry, you have to give more focus on the variation. So this is what I think इसमें कोई question भी है नहीं. So first class में जो था, initially the intro class was this only. I'll now quickly go to my note what I have said. यहाँ पे किसी को कोई question है क्या? Good for me. सर इट्स गुड फॉर मी सो फार. यहाँ तक तो मैंने कवर कर लिया था. इट वॉज ईजी टू फॉलो. तो क्विकली देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट यहाँ पे जो मैं दिया हूँ ना, I have highlighted in yellow, like your consumer surplus, what I mentioned in the Samsung and those cases. So what can be a key point to be a question I have mentioned here, right? So all those things whatever I mentioned quickly is there. So you can just refer the yellow and the blue part, so that will give you more insight, right? So now I'm coming to the next part, which is the next slide जो किए थे, that was into this one. So this we have covered, make to stock and make to order, right? Make to stock क्या है? I'm manufacturing, I'm producing and I'm making it available like all FMCG company. Make to order में क्या है? इसे customized product. So when it's a make to order, my key focus is that after the quality, the quick delivery. My lead time has to be less. If someone is ordering shirt with me, I can't tell that take it 2 months of lead time. So that's how actually difference between. So when you are make to order, you are more focused on standardization, you are more focused on lead time. So these are the 2 difference what we have discussed. And second is the process is not, you can leave it also, nothing is there. So यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. एक ये 2 एग्जाम्पल थोड़ा जो शर्ट का कराए थे, एग्जीक्यूटिव शर्ट एंड फोरकास्ट. 2 things will do go bit slow, but probably एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. But before we go that, so यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझना पड़ेगा. So this is an example what professor has covered. So यहाँ पे देखेंगे first process is RM1, second process is RM2. So both the process with assume it as if it's a passport processing unit, right? So RM1 and RM2 probably दोनों consecutively simultaneously चलता है. Then it goes to your process 2, then process 3, and यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है. So that's how it is. So आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ जो प्रोफेसर ने बताए थे, व्हाट इज योर बॉटलनेक. सो बॉटलनेक क्या होता है? जो प्रोसेस में सबसे ज़्यादा कम प्रोसेस जहाँ पे आउटपुट सबसे कम है और सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे लगता है. सो यहाँ पे अगर आप पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो प्रोसेस 1 में 1 घंटे में अगर 3 मिनट लगता है, सो 1 घंटे में आप 30 यूनिट प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली आप प्रोसेस 4 में 1 घंटे में आप 30 यूनिट प्रोसेस कर सकते हैं. And your process 2 में up 15 units and process 3 में you can process 10 unit. So 10 unit cases 60 minutes per hour divided by 6. So that's how it's 10 minutes. So यहाँ पे मैं जितना भी first process करूँ, but here there is a bottleneck, right? I can't process more than 10 units per hour. So in this case, इसको बोलते हैं हम जो बोलते हैं cycle time bottleneck. This is called as a bottleneck.
एंड साइकिल टाइम इज ऑलवेज डिराइव्ड बाय द बॉटलनेक। आपको एक यूनिट प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगता है, जो बॉटलनेक का टाइम होता है। सो इस केस में बॉटलनेक इज 6 मिनट। सो दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है। एग्जीक्यूटिव सर के केस में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कितना टाइम टोटल लगेगा प्रोसेस कवर करने के लिए, राइट, विच इज कॉल योर फ्लो टाइम। सो यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 साइमल्टेनियसली जाता है, बट योर प्रोसेस 1 टेक्स 3 मिनट। सो 3 मिनट आपको लगेगा प्रोसेस 2 तक पहुँचने के लिए। सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू मूव आउट इज 3 मिनट प्लस 4 मिनट प्लस 6 मिनट। सो यहाँ पे मैं क्यों 3 लिया, बिकॉज 2 और 3 में से ये साइमल्टेनियसली दोनों चलता है। 3 इज बिगर, सो हियर दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 3 मिनट्स। तो 3 प्लस 4 प्लस 6, सो टोटल आपका 13 मिनट लगता है, विच इज कॉल्ड द टोटल टाइम। लीड टाइम भी बोलते हैं, टोटल फ्लो टाइम भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे बॉटलनेक WIP कुछ नहीं है तो फ्लो टाइम एंड लीड टाइम दोनों सेम रहेगा, विच इज 13 मिनट। और यहाँ पे जो आपका साइकिल टाइम रहेगा विच इज द बॉटलनेक का टाइम। साइकिल टाइम क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रोसेस पूरा चालू है, एक बंदा बाहर आया और दूसरा बंदा बाहर आने में जितना टाइम है दैट इज योर कॉल साइकिल टाइम। सो इस केस में 6 मिनट आपका बॉटलनेक है। तो भले ही यहाँ पे ज़्यादा यूनिट्स प्रोसेस हो पर आवर, बट यहाँ पे क्या करेगा, आपका 6 मिनट लगेगा ही लगेगा। ये बंदा आके यहाँ पर अटक के रहेगा। यहाँ पे 3 मिनट लगा दिया, यहाँ पे 4 मिनट लगा दिया। तो यहाँ पे एक बंदे को 1 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बंदे को एक्स्ट्रा 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हर एक बंदा 6 मिनट के बाद ही बाहर आएगा। सो आपका साइकिल टाइम जो है आपका बॉटलनेक से ही डिसाइड होता है। सो इन दिस केस इज 6 मिनट। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये अगर क्लियर है देन आई विल गो मूव ऑन। एक बार फिर समझाएंगे क्या मनोज जी, थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, सो कहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन, सॉरी, हेलो। फ्लो टाइम और साइकिल टाइम, और जो आपने बोला कि जहाँ पे वो थर्ड बंदे को टाइम लग रहा है तो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, मतलब वहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आपने जो एग्जांपल दिया उसको समझते हैं, देन टेक्निकल टर्म में बाद में आएंगे। सो फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट प्रोसेस करने के लिए गए, फिर आप स्टार्टेड हियर, राइट। आपका प्रोसेस दोनों जगह से शुरू हो गया, प्रोसेस 1 में भी शुरू हो गया, प्रोसेस 4 में भी शुरू हो गया, राइट। तो आपको पहले ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस 4, फिर आपका प्रोसेस 1 खत्म होगा। क्यों आपके यहाँ पे देखिए 2 मिनट लगता है, यहाँ पे आपको 3 मिनट लगता है प्रोसेस 1 में। सो प्रोसेस 2 तक आपको जाने में आपको 3 मिनट लगेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ प्रोसेस हो रहा है। ये क्लियर है? यस मनोज जी, यहाँ तक समझा है। ओके, सो नेक्स्ट आप देखेंगे ना, यहाँ पे 3 मिनट में तो क्लियर हो गया, बट यहाँ पे जब प्रोसेस चल रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जाके वो अटकेगा, मतलब 1 मिनट उसको अटकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे को ना 4 मिनट लग रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ना, प्रोसेस 1 एंड 2 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक बॉटलनेक है। आप भले ही जल्दी प्रोसेस कर दे प्रोसेस 1 में और प्रोसेस 4 में, बट एक्चुअली कांट, वहाँ पे उसको 1 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा बंदा जो है 4 मिनट लग रहा है, राइट। तो अगर प्रोसेस 2 तक जाऊँ तो मेरा बॉटलनेक जो है प्रोसेस 2 का है। नाउ आई एम कमिंग टू प्रोसेस 3, राइट। सो मान लीजिए यहाँ पे भी बंदा प्रोसेस चालू है, यहाँ पे 4 मिनट में ख़त्म कर दिया, बट जो नेक्स्ट बंदा है अगर उसको 6 मिनट लग रहा है, सो टेक्निकली प्रोसेस जब साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा बॉटलनेक है, तो यहाँ पे बंदे को 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यहाँ पे भी आपका वेटिंग टाइम रहेगा, करेक्ट। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस में, हर प्रोसेस में मुझे 3-3 मिनट लगता है, तो एक बंदे को बाहर निकला, दूसरे बंदे को भी बाहर निकलने में 3 मिनट लगता है, राइट, बिकॉज एवरीवन इज 3 मिनट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 मिनट एक जगह, बिकॉज एक प्रोसेस 3 टेक्स मोर टाइम विच इज 6 मिनट, राइट। सो इसीलिए जो मेरा जितना फास्ट में पीछे प्रोसेस चल रहा है, बट थर्ड प्रोसेस इज नॉट इन द सेम स्पीड, सो दैट इज कॉल्ड एज बॉटलनेक। ये क्लियर है? ओके, समझा ना। सो बॉटलनेक इज एक्चुअली, ये याद रखना है आपको, बॉटलनेक के लिए जितना टाइम लगता है, इसका मतलब आपका जब प्रोसेस पूरा चालू है तो आपका हर बंदा उतने टाइम के बाद बाहर निकलेगा, और ये अगर इससे प्रोडक्ट, तो हर प्रोडक्ट उतने टाइम के बाद बाहर निकलेगा। एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट का जो गैप रहेगा उतना ही टाइम रहेगा। सो इन द पर्टिकुलर केस, इफ इट्स ए पासपोर्ट, इट्स ए सर्विस, सो इट्स 6 मिनट्स। इफ इट्स ए प्रोडक्ट देन इट्स 6 मिनट। प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट जो आएगा तो 6 मिनट में आएगा, सर्विस है तो एक बंदा जो निकलेगा 6 मिनट में। सो दिस इज कॉल्ड योर साइकिल टाइम, और which is defined as per your bottleneck. ये clear है cycle time? Yes. So sir, एक चीज़ I just want for my understanding
कि whether you go by RM1 or whether you go by RM2, right? So process 3 is the bottleneck, 6 minutes. That is वो बराबर clear है. अब दूसरे तरीके से समझिए, मान लीजिए आपका प्रोसेस 3 नहीं होता, ओनली प्रोसेस 2 में भी आपका खत्म हो गया. सो इस दैट केस में कहाँ पे बॉटलनेक है? मान लीजिए आपका प्रोसेस 2 ही है फिर. सो जो बोलता है होल प्रोसेस में हाँ. जहाँ पे आपका बॉटलनेक है, चीजें जहाँ पे अटकता है, बिकॉज ऑफ दैट इज द कंस्ट्रेंट. मान लीजिए मैं प्रोसेस 3 में मैं और एक काउंटर लगा लेता हूँ, हाँ. समझ रहे? सो मैं 3 मिनट हो गया, फिर वो फास्टर पास होगा, राइट? सो फिर मेरा बॉटलनेक प्रोसेस 2 बन जाएगा. बट ओके, बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कहते हैं साइकिल टाइम तो पूरा RM1 या RM2 का पूरा एग्जीक्यूशन टाइम हुआ ना, तो वो तो 13 मिनट्स या 12 मिनट्स हुआ. सॉरी साइकिल टाइम होने, साइकिल टाइम बोल रहा है आपका आउटपुट जो एक निकलता है, दूसरा आउटपुट में जितना टाइम गैप है, दैट इज योर साइकिल टाइम. सो व्हिच इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉटलनेक. जब आपका प्रोसेस पूरा चालू है तो एक बंदा बाहर निकला, राइट? तो दूसरा बंदा बाहर निकलेगा, कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेगा, करेक्ट? बट उससे पहले भी तो 1 और 2 में 3 और 4 मिनट्स उसने और लगाया, तो टोटल 7 मिनट्स. सो इट इज ऑलरेडी स्पेंट द टाइम. आई मीन साइकिल तो पूरा स्टार्ट्स फ्रॉम या तो 1 से या 4 से, राइट? दैट इज डिफरेंट. आई एम एक्सप्लेनिंग. सॉरी मेरा क्वेश्चन ये था कि 1 2 3 तो पूरा ही कवर करना पड़ेगा ना, चाहे RM1 हो चाहे RM2. आपको नहीं आपका राइट वो करना पड़ेगा. मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझ रहा हूँ. सो साइकिल टाइम किसको बोलते हैं? कि अब जब का कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट? आपका एक आउटपुट, मान लीजिए एक बंदा बाहर निकल गया, एक बंदा बाहर निकलने के बाद दूसरा बंदा जो बाहर निकलेगा, जो टाइम गैप है, दैट इज योर साइकिल टाइम. ये क्लियर है? साइकिल टाइम क्या है? ओके, बट इस केस में पूरा बाहर निकलने में तो सारे समझ होगा सबका. सुनना नहीं, I'm again you are just Okay. हाँ. मनोज जी एक बार फिर से बताइए, नहीं समझ में आया. हाँ. जी साइकिल टाइम का जो डेफिनेशन दिया था ना, उसमें क्लियरली वो बोला था कि इट इज टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव आउटपुट्स. करेक्ट ऐसे डेफिनेशन दिया था. तो आप मतलब हम लोग को जो पढ़ के लगता है साइकिल टाइम मतलब पूरा टाइम, तो वैसे टर्मिनोलॉजी नहीं है. वो है लीड टाइम. जो आप लोग बोल रहे हो ना, पूरा कितना टाइम लगता है, वो लीड टाइम रहता है. और साइकिल टाइम मतलब टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव आउटपुट्स. करेक्ट. सो यहाँ पे आपको दिस इज लैंग्वेज में समझाऊंगा. तो एक बंदा, मान लीजिए आपका प्रोसेस पूरा कंटिन्यूस चालू है, एक बंदा निकला, मान लीजिए पहला बंदा आउटपुट निकल गया, दूसरा बंदा जो निकलेगा कितना टाइम लगेगा? सो आपको देखिए एक बंदा निकल गया तो 6 मिनट आपका बॉटलनेक है. जो सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे लग रहा है ना, एक्चुअली उतने टाइम में ही आपका दूसरा बंदा आएगा. सो दैट इज कॉल्ड योर साइकिल टाइम. आप एक बार तसल्ली से सोच लीजिए, मान लीजिए एक बंदा निकल गया, राइट? सो दूसरा बंदा जो निकला, सो लास्ट प्रोसेस आपका प्रोसेस 3 है. सो मतलब एक बंदा जो आपका खत्म हो गया उधर, सो दूसरा बंदा यहाँ पे स्टार्ट करेगा, जो इसका लाइन में होगा, क्यू में होगा, राइट? सो दूसरे बंदे को ये प्रोसेस खत्म करने में जितना टाइम लगेगा, सो इसका मतलब दूसरा बंदा उतने टाइम में ही बाहर निकलेगा. सो दैट लाइक उपेंद्र मेंशन, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आउटपुट. ये क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक टिल मोहित यू हैव डाउट. मनोज जी, इन सिंपल लैंग्वेज ये भी कह सकते हैं ना कि टाइम टेकन बाय द बॉटलनेक स्टेज वी कैन कंसीडर एज अ साइकिल टाइम. करेक्ट, तो सिंपल कर सकते हो, बट मैं कंसेप्चुअली बोल रहा था कि वो अल्टीमेटली वही होगा ना. तो आप देखो यहाँ पे आ गया ना, एक बंदा खत्म करके निकल गया, दूसरा बंदा आने में 6 मिनट लगेगा. राइट, बॉटलनेक का जो रहेगा बस वही साइकिल टाइम. बेसिकली जो बॉटलनेक है, विच इज़ बेसिकली द मैक्सिमम टाइम जहाँ पे ले रहा है, वो हो गया वो आपका साइकिल टाइम हो गया. उतना याद रखो, बाकी आपको देखना है कहाँ पे बॉटलनेक है, वही साइकिल टाइम है. तो सर then flow time will be 13 minutes या 12 minutes, right? Depending on RM1 या RM2. पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करके निकलने में कितना टाइम लगेगा? Right, okay, so that is flow time. करेक्ट. फ्लो टाइम प्रोफेसर ने एक बार मेंशन किया है पीपीटी में, बल्कि पढ़ाया नहीं, बट दैट इज फ्लो टाइम. ठीक है. सो दिस इज नाउ विल कम टू एग्जीक्यूटिव शॉर्ट केस. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा, बट अगर कुछ जरूरत होता है तो समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए. सो एग्जीक्यूटिव शॉर्ट केस में क्या बोल रहा है? सो द केस व्हाट द केस इज, 3 पार्ट में केस था, बट प्रोफेसर ने एक ही पार्ट कराया. सो विल डिस्कस ओनली 1 पार्ट. वो 1 पार्ट में क्या डिस्कस किया है? सो
whole focus is on your लेबर एफिशिएंसी आपका कैसे यूटिलाइज हो रहा है, लेबर का जो यूटिलाइजेशन, राइट। सो वहाँ पे सारा चीज़ें आपका किया हुआ है, आपको समझ उधर आ जाएगा। तो वन बाय वन आई एम जस्ट आई विल जगल बिटवीन एक्सेल एंड दिस शीट। ओके, सो पहले क्या है आपको प्रोसेस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। सो एग्जीक्यूटिव शर्ट केस में क्या बोल रहा है, सो देयर आर वेरियस प्रोसेस जो शर्ट बनाने का। So he has given the process like cutting, making color, making cups. So there are multiple process, and he has given the number of worker deployed in each process. Like cutting there is 4, make color there is 8. So similarly हर process में कितना labor deployed है वो दिया हुआ है. So total number of labors if you add all those number is 64. Correct? So this is clear, right? So next क्या बोल रहा है कि हर एक बार में बैच प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यहाँ पे। तो बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे 60 लेयर को एक लेयर को बिछाने में, उसको ले ओवर करने में उसको लगता है 1.5 मिनट्स। सो अगर वो 60 लेयर बिछाता है तो 60 into 1.5 इट विल टेक 90 मिनट, राइट। एंड बोलता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लेयर इट टेक्स 30 मिनट्स टू कट, उसको काटने में 30 मिनट लगता है। सो इफ यू ऐड दैट टोटल टाइम लगता है इन कटिंग में, एक तो बिछाने में जो टाइम है प्लस कटिंग में। सो इफ यू ऐड 90 प्लस योर 30 इट कम्स टू 120 मिनट। ये क्लियर है क्या 120 मिनट का यहाँ तक? So far, yes sir. So far cleared sir. So far cleared. Yes sir. ओके, सो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे देखिए कटिंग में 4 बंदे इन्वॉल्व है, राइट। 4 गाइज इन कटिंग, राइट। सो इसका मतलब कितना, 4 बंदों का अगर 120 मिनट लग रहा है इन दैट प्रोसेस एंड 4 वर्कर्स इन्वॉल्व, सो टोटल लेबर मिनट्स हो गया कितना 480, 120 into 4 480 हो गया, करेक्ट। सो दिस इज क्लियर 480 मिनट्स कैसा है कटिंग में? यस। ओके, सो नाउ कितना शर्ट का वो प्रोसेस करता है 480 मिनट जो लगाता है, कितने शर्ट के लिए वो कटिंग करता है? वो बोलता है कि एक लेयर में एक साथ में वो 60 लेयर वो कट करता है एंड एक लेयर में वो लिखा है कि 8 शर्ट बनता है। तो उसका मतलब नंबर ऑफ शर्ट जो बनता है 60 into 8 तो 480 वो करता है इस बार में, राइट। सो इसका मतलब मिनट कितना लगा, कितना लेबर मिनट लगा ऑन कटिंग ऑफ 1 शर्ट, दैट इज 1 लेबर यूनिट। ये क्लियर है? Yes. So now I'm coming to Excel. The same thing he has given Excel में कि कितना मुझे लग रहा है एक शर्ट का कटिंग प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, करेक्ट। So now similarly he has given all those things it's given in the annexure. If you open that short executive short का केस आप खोलेंगे, I'll just quickly open it for your executive short company. यहाँ पे आप खोलेंगे तो बाकी सबका उसने टाइम दिया हुआ है, बट फर्स्ट का उसने इसलिए नहीं दिया कि यू शुड नो हाउ इट्स कैलकुलेटेड। आई विल क्विकली कम कहाँ पे दिया उसने। तो यहाँ पे देखेंगे बाकी प्रोसेस का टाइम दिया हुआ है, जैसे मेक कलर, ओके सॉरी आई जस्ट क्विकली देखिए 3.9 यहाँ पे 3.9, मेक कप्स 2 एंड मेक स्लिप्स 0.65। सो बाकी सब एक प्रोसेस में दिया हुआ है। ये क्लियर है? बी कॉलम बी। सर एक बारी सॉरी कॉलम भी एक बार फिर से बताइए, ये 3.9 कैसे आया जैसे सर कॉलर के लिए? ये वाला आपका एनेक्सर में दिया हुआ है, जैसे Okay. कैलकुलेट हुआ ना, Okay, okay, हाँ, okay. चीजें वो एनेक्सर में दिया हुआ है, Right, फर्स्ट right. इसलिए वो दिया, he has mentioned how he has calculated, right? So ठीक. similarly कैलकुलेशन डिटेल नहीं है, but he has given in your appendix. So problem क्या है, he has mentioned there. So this came directly from here. If you see that page 6 में है, ये क्लियर है? Manoj, can you just come again on this, please, Manoj? One more time, please. ये वाला? ये पहले बोला था ना आपने 1 मिनट का कैलकुलेट किया था ना 480. Okay, 1 मिनट का कैसे हुआ? I'll explain you on this set. Sorry, the upper side. So देखिए, टोटल आपका बोल रहा है कि कपड़े 60 लेयर एक बार में काटता है, इसे बैच प्रोसेसिंग, because they are currently जो बिजनेस करते हैं, they give more emphasis on cost efficiency, give more emphasis on volume, right? कितना ज़्यादा वॉल्यूम प्रोसेस करें so that they can optimize the cost. तो क्या करते हैं 60 लेयर वो एक बार में काटते हैं, करेक्ट। सो बोलते हैं एक लेयर को बिछाने के लिए, बिकॉज वो क्या कटिंग करेगा तो एक लेयर बिछाएगा ना, तो एक लेयर को ले ओवर के लिए 1 layer takes 1.5 minutes. If he puts lay over 60 layer,
it will take 60 into 1.5 minutes per layer, which is 90 minutes, right? वो बोलता है कि कटिंग के लिए irrespective of number of layer it takes 30 minutes, right? So that's why it's called batch processing, because batch processing में क्या होता है, एक टाइम आपका वेरिएबल होता है, एक टाइम आपका फिक्स होता है, right? So totally to add that's layover time and cutting time, which is 90 plus 30, which is 120 minutes. So 120 मिनट अगर वो प्रोसेस में हो गया तो 4 लेबर लगे. इसका मतलब अगर मैं लेबर मिनट में कितना हो गया, 4 लोगों का मिला के that becomes 480 minutes. And similarly, number of shots he's cutting is 480. So that's how the 1 minute is coming. So which is he has taken here. Yeah, thank you. Okay. So similarly, बाकी process का दिया हुआ है. He has not given the details to calculate, but he has given in the annexure. So this is clear. Now I'm coming to column C. So column C हमने देखा वहाँ पे जो number of person दिया है, labor deployed in each process is given. Total number of labor is 64. Is given in the problem. If you go to that case also, you can see it. So executive set case में, so यहाँ पे देखेंगे number of workers दिया हुआ है 8, 4, 2. So if you add all those numbers, it comes 64. So make color देखोगे 8, make curves 4. So if you go that Excel, you can correlate here. Make color 8, make curves 4. So this is how if you take the total, it comes 64. ये clear है? Number of workers. Column C is clear, right? Is given. Yep, columns and column D is multiplication of B and C. Right. So column D बोल रहा है कि अगर आपका चार बंदे एक प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल कटिंग में 4 लोग हैं, तो पर डे वो कितना मिनट्स होता है? जैसे 4 इंटू एक दिन में आपका 8 घंटे and 60 minutes है. Divided by. So total number of minutes spent by in each process is 1920. ये clear है? Right. सिमिलरली बाकी प्रोसेस का भी सेम कैलकुलेट किया है इस there. तो सिमिलरली हर प्रोसेस का उसने कैलकुलेट किया, टोटल लेबर डेज कंटेंट कितना पर डे लग रहा है. ये क्लियर है? Yes. राइट. सो नाउ ही इज टेलिंग के कैपेसिटी ऑफ शर्ट, बिकॉज यहाँ पे दिया टोटल नंबर कितना मिनट लगा रहा है किस प्रोसेस में, और यहाँ पे दिया है आपका हर शर्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है. राइट. इफ यू डिवाइड यू विल गेट द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोसेस्ड इन ईच प्रोसेस. राइट. ये वाला कॉलम देख लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yep. ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है. कॉलम ई इज क्लियर, राइट. ओके. तो यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे तो आपका बॉटल नेक कहाँ पे, जो हमने अभी देखा पासपोर्ट के केस में जहाँ पे 6 मिनट था. सो वेयर इज द बॉटल नेक हियर? बॉटल नेक जहाँ पे के सबसे ज्यादा टाइम लगता है और सबसे कम और वाइस वर्सा सबसे कम प्रोसेस होता है. सो यहाँ पे आप देखें, सो वेयर इज योर बॉटल नेक? व्हिच प्रोसेस इज योर बॉटल नेक? सर मेक कफ्स. करेक्ट. तो यहाँ पे आपका 960 इज योर बॉटल नेक व्हिच इज योर मेक कफ्स. बिकॉज बाकी सब जगह आपका ज़्यादा प्रोसेस होता है. डिस्पाइट आई एम प्रोसेसिंग कटिंग more clothes on cutting operation, but I can't process 1920 because here is my bottleneck. So bottleneck यहाँ पे हो गया and he has taken the capacity utilization कितना होता है, right? So capacity utilization केस में दिया है कि per day का उसका डिमांड जो है 800 है. So that's how he has calculated capacity utilization. bottleneck जहाँ पे maximum capacity वहीं पे utilize हो रहा है. So मनोज, ये डिमांड, ये मतलब bottleneck से अचानक डिमांड पे जो स्विच होता है ना, वो क्या लॉजिक से होता है? जी एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज किया है. इसे रीजन क्या है ना, यहाँ पे भी जो बॉटल नेक है ना, ये बॉटल नेक कैपेसिटी निकाला, बट प्रोफेसर कंफ्यूज करने के लिए जो आप देखोगे ना, केस पढ़ोगे, सो द केस इज मच बियॉन्ड दिस कैलकुलेटिंग साइकिल टाइम एंड समथिंग. वहाँ पे एक फैक्टर दिया है कि उसका डेली का जो डिमांड है 800 शर्ट्स, राइट. सो हियर एक्चुअली जो डिमांड है एक्चुअली साइकिल टाइम वगैरह में कहीं यूज ही नहीं होना. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज प्रैक्टिकली क्या करता है ना, वो कैलकुलेशन के लिए वो ले रहा है 960 ले रहा है, बट प्रैक्टिकली उसके 800 का डिमांड है. सो बिट कंफ्यूजिंग. बट ये वाला खाली अगर कैपेसिटी देखना है कितना यूटिलाइज हो रहा है, सो ओनली कोरिलेशन इज जहाँ पे बॉटलनेक है वहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है. एक्चुअली प्रफुल्ल हियर, कैन आई शेयर समथिंग? प्लीज. इसमें कोई भी प्रोसेस के जो पैरामीटर्स कैलकुलेट होते हैं उसके लिए ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदर योर प्रोसेस इज ड्रिवन बाय डिमांड और वेदर इट इज ड्रिवन बाय कैपेसिटी.
For example, in this case, our bottleneck capacity is 960. That means our total plant can produce only 960 maximum shirts per day, because our bottleneck process of make cuffs can make 960. Now, if I have to if my demand is more than 960, let's say 980 or 1000 or even 2000, it doesn't matter, because maximum shirts I am gonna produce is 960 only. So if the demand is higher than your bottleneck operation, in that case, wherever we are doing the calculations for efficiency and utilization, etc., in such cases we should use the bottleneck capacity as a denominator. Whereas if our demand is less than our capacity, bottleneck capacity, in this case, for example, our demand is only make 800 shirts, whereas our capacity is 960. So in such case, because you are running your plant as per the demand, so wherever capacity utilization or calculation is there, we can use the demand as the denominator. That is the funda which I have understood. And यहाँ पे करेक्ट, and यहाँ पे आप आगे देखेंगे ना, so यहाँ पे जब निकाल रहा है, now is यहाँ तक वो bottleneck and cycle time calculate किया, यहाँ पे उसने capacity utilization क्यों निकाला? Because his demand is 800 units. So यहाँ पे अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा. So यहाँ पे क्या निकाला उसने? कि बस capacity utilization, because my requirement is 800. So this is my capacity utilization. One point to observe here is जहाँ पे आपका bottleneck है, वहाँ पे आपका maximum capacity utilize हो रहा है. If you see the bottleneck is make cups, so यहाँ पे आपका 83% आपका capacity utilize हो रहा है. But the next step is required, क्योंकि क्यों चाहिए वो? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपका ये प्रोसेस में मान लीजिए आपका कटिंग में 41.7% का कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, राइट? देन आपका लेबर कितना चाहिए होगा? इसका मतलब फोर्स जो आपका लेबर है उसका 41.7% का नंबर ऑफ लेबर विल बी रिक्वायर्ड, करेक्ट? ये वाला समझ में आ रहा है ना जी का? सर एक बारी F वाला दिखाएंगे कि वो परसेंटेज कैसे आया 800 बाय ये क्या बोल रहा है कि 800 का आपका डिमांड है, तो आप 800 अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे, सो व्हाट वुड बी योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? सो आपका 8 डिवाइडेड बाय अवेलेबल कैपेसिटी व्हिच इज 1920. सो यहाँ पे 41.7% आया, यहाँ पे 81.3% आया. सो दैट्स हाउ इट इज. ओके, ठीक है. सो यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप जो पहले उपेंद्र का क्वेश्चन था, व्हाई इट्स वेल कैलकुलेटिंग इट, बिकॉज अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल कटिंग में आपका 41.7% का यूटिलाइज होता है, सो इसका मतलब यू डोंट नीड फोर लेबर, राइट? यू कैन प्रो डाटा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर 41.7%, बट सिंस इट्स अ लेबर यू कैन यूज इट इन फ्रैक्शन, सो यू हैव यूज्ड हियर राउंड. सो इसका मतलब 4 आपका चाहिए 1920 कर सकता है, बट फॉर 41.7% यू नीड 2 लेबर. सो अंडरस्टूड कॉलम जी? कॉलम जी आए क्या समझ में? हाँ. So this is how actually he has calculated for each process. कि आपका जो लेबर यूटिलाइज हुआ है, if you are actually not utilizing the full capacity, and this is your capacity utilization, so what is the labor requirement? So here he has calculated, so my labor requirement is 52, so I don't need 64 labor. So that's how he has done. कि आपका ये जो पूरा first part of your exercise, the 12 surplus labor is utilizing which he can optimize. So second problem में था कि अगर वो कस्टमाइज लाइन लगाता है, so कैसे यूटिलाइज कर सकता है? So probably हमारा लैब तो उधर यूटिलाइज कर सकता है. If I limit my problem to what I am discussing, probably 12 labor he can reduce. So that's the problem. Next is whatever you studied will come to cycle time and everything. So cycle time हमने क्या पढ़ा था? जो प्रोसेस में आपका सबसे ज़्यादा bottleneck वो है, right? So यहाँ पे आपका मेरा bottleneck कहाँ पे? 960 is my bottleneck, जो कि मेरा मेक कप्स में. सो पर डे में मेरा कितना आ रहा है? 8 into 60 जो कि 480, करेक्ट? तो 480 मिनट्स है. सो 480 मिनट्स में मैं 960 बनाता हूँ, राइट? तो इसका मतलब 160 को कितना टाइम लगाता है? 480 डिवाइडेड बाय 960, राइट? सो 0.5. सो दिस इज माय साइकिल टाइम व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉटलनेक. ये वाला क्लियर है क्या? साइकिल टाइम का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज mostly as covered. Most common. Yeah. Cycle time clear for everyone और किसी का डाउट है? Clear.
Clear, sir. ये साइकिल टाइम में कैपेसिटी पकड़ा है ना? साइकिल Bottleneck capacity. आपका लोएस्ट आप बोला ना जहाँ पे बॉटलनेक है, सो हमने देखा बॉटलनेक इज में कब्स में मेरा बॉटलनेक है, सो 960, सो 960 यूनिट बना रहा है कितना 480 मिनट में, राइट? सो एक शर्ट को कितना टाइम लगेगा, मैं जितना वो है बॉटलनेक का जितना लगता है 480 डिवाइडेड बाय 960 0.5, सो दैट्स हाउ ही हैज कैलकुलेटेड 0.5 एज ए बॉटलनेक, और बॉटलनेक का जो टाइम लगता है एक्चुअल साइकिल टाइम इज 0.5. जस्ट वही जो लिंक आया था ग्रुप पे यूट्यूब का, इसमें इसका आंसर 0.6 आया है. करेक्ट. सो 0.6 इसलिए ओपन रहा है बिकॉज यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है ना, ये प्रोफेसर ने कंफ्यूजन नहीं करने के लिए उसने उसको 800 किया. इफ यू सी दैट एग्जांपल, तो यहाँ पे वो 800 कर दिया जो निकाला है, तो बिकॉज ये हैज कैलकुलेटेड किया वाज 800 यहाँ पे. इफ आई डू इट फॉर 800, इफ आई चेंज द आउटपुट 800, सो इट विल बी 0.6. क्या करना चाहिए अगर कल गो एज पर 960. सो वहाँ पे कल के लिए मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं कर रहा, कल के लिए गो बाय दिस व्हाट प्रोफेसर हैज कवर्ड. अच्छा, ओके, ठीक है. तो वहाँ पे क्या किया ना, जो प्रॉब्लम जो एक्चुअल में क्या है जो वीडियो में, वो क्या बोला, ठीक है 960 आपका कैपेसिटी है, बट आप इतना तो लगा रहे हो ना, तो आपका इसका मतलब लेबर जो लगता है 480 लगता है, और आपका 800 यूनिट बनाते हो. सो दैट्स हाउ ही हैज टेकन 0.6. तो बट आगे के लिए बेटर नॉट टू वाई नहीं अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो. ठीक है. सो सेकंड इज दैट योर लीड टाइम. सो लीड टाइम का क्या बोलता है कि जितना आपका WIP में पड़ा हुआ है, राइट, वो क्लियर करोगे तो आप नया ऑर्डर लोगे, सो दैट इज योर लीड टाइम, करेक्ट. सो यहाँ पे कैसे वो कैलकुलेट किया है, इफ यू सी द एग्जांपल क्वेश्चन, सो वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि दीज आर द इस नंबर ऑफ बैचेस आर इन माय WIP. वो प्रॉब्लम आप देखेंगे तो आई विल क्विकली शो यू. सो इज गिवन इन द एग्जांपल. तो ये देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रोसेस में एवरेज WIP ऑफ 60 शर्ट बैच. सो कटिंग में मेरा 16 बैच पेंडिंग है, स्विंग में मेरा 144 बैच पेंडिंग है, इंस्पेक्शन में 12 बैच. सो टेक्निकली उसका टोटल जो नंबर ऑफ बैच इन WIP वर्क इन प्रोग्रेस है 196 नंबर ऑफ बैचेस. सो एक बैच में 60 शर्ट है. सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ, इसका मतलब मेरा कितना WIP है इस इंटू 60, राइट. सो मेरा 11,760 शर्ट्स मेरा प्रोसेस में WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि चल रहा है. तो इसका मतलब लीड टाइम क्या है, लीड टाइम क्या है मेरा WIP इंटू मेरा जितना साइकिल टाइम, दैट इज माई लीड टाइम. सो दिस इंटू योर एक शर्ट को कितना मेरा टाइम, मेरा साइकिल टाइम है 580. इसको अगर मैं नंबर ऑफ डेज में करूँ, एक दिन में मेरा 480 डेज 480 मिनट्स है, तो 12.25. सो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम ऐसे कैलकुलेट किया 12.25. ये तीनों चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट. So 196 को 60 से आपने मल्टीप्लाई किया, करेक्ट? पहले जो टू गेट दैट वैल्यू. ये वाला था आपका साइकिल टाइम क्या है, टोटल मेरा एक शर्ट को कितना टाइम लगता है जहाँ पे बॉटलनेक है. 960 शर्ट है, 480 मिनट लगता है 900 शर्ट के लिए, एक शर्ट के लिए 0.5, दैट इज देयर, राइट. सो WIP इज गिवन कितना है, हमने देखा 11,760 उसका प्रोसेस में, करेक्ट. सो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम का फॉर्मूला क्या है, आपका WIP इंटू आपका बॉटलनेक का जो टाइम लगता है. सो WIP इतना हो गया, बॉटलनेक का टाइम हो गया, इतना मिनट्स हो गया, राइट, इतना मिनट्स हो गया. उसको मैं डेज में कन्वर्ट करूँ, एक डे में मेरा 480 मिनट्स है, विच इज 12.25. दैट्स हाउ मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड. मुझे क्लियर है ना यहाँ पे, एनी? ठीक है, राइट. यस Yes. क्लियर है. क्लियर है सर. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड, जो भी हम मेरा जो बॉटलनेक के साथ भी डिड, राइट. बॉटलनेक के कंटेंट क्या पे यहाँ पे टोटल मेरा एक शर्ट का कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड माय लेबर कंटेंट. अब टोटल कैलकुलेट करेंगे जो प्रोसेस का 26.51. सो दैट्स हाउ इज गिवन लेबर कंटेंट कितना है. लेबर परसेंटेज यूटिलाइजेशन हमने कैलकुलेट किया है वहाँ पे. सो यहाँ पे लेबर परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया, बोला कि अगर 800 शर्ट का मेरा डिमांड है और एक शर्ट को मेरा लगता है 26.51 मिनट. सो इसका मतलब बट एक्चुअली में कितना मेरे पास लेबर है, मेरे पास, ओके आई विल जस्ट डू इट सेपरेटली. सो एक शर्ट को मेरा लगता है 26.51. सो मेरा जो 800 शर्ट है कितना टाइम लगना चाहिए, इतना मेरा टाइम लगना चाहिए, राइट. बट मेरे पास आवर कितना है, मेरा 64 लेबर है
एक लेबर को 8 घंटे लगता है और 1 घंटे में 60 मिनट। सो मेरा लेबर टाइम जो टाइम मेरा है अवेलेबल है 30,720 है। सो इसका मतलब मेरा यूटिलाइज कितना हो रहा है लेबर का 69.2। So that's why I is calculated here. ठीक है, Clear है? यस। So now the last part was calculated कि मेरा कॉस्ट एक शर्ट का कितना लगता है। वो बोल रहा है कि 64 लेबर है, 8 घंटे, 1 घंटे को मैं $6 का देता हूँ मैं, मतलब my wages is $6 per hour, that is given in the question. So if I divide it 800, it comes to 3.84 rupees per shirt labor cost. So this is what we covered in executive shirt case. सो ये लेबर कंटेंट, लेबर यूटिलाइजेशन और लेबर कॉस्ट, इस सब में डिमांड पकड़ा जाता है, राइट? इस समय डिमांड, राइट। तो ये वाला कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी, हाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में दैट्स व्हाई इज कैलकुलेटेड बिकॉज़ इसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया है। ये मनोज जी, ये जो 800 मतलब इसका लॉजिक ये तो नहीं, मतलब जो फ्लो रेट रहता है 800 तो उसने दिया हुआ है, तो प्रवीण 800 का नहीं, इट्स अ फ्लो रेट का जो डेफिनेशन है मिनिमम ऑफ डिमांड और प्रोसेस कैपेसिटी। डिमांड में 800 है, फ्लो रेट यहाँ पे तुम निकाल नहीं 960 पाओगे। सॉरी प्रवीण, यहाँ पे तुम फ्लो रेट निकाल नहीं पाओगे। फ्लो रेट यू हैव टू कैलकुलेट के एक शर्ट को स्टार्टिंग से एंड तक ना आपका कितना जाएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको बॉटल नेक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे प्रोसेस फ्लो डाल के डालना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू हैव टू प्लॉट इट सेपरेटली। नहीं, इसमें ये दिया था ना पीपीटी में, उनके स्लाइड में फ्लो रेट का ये फॉर्मूला दिया था, मिनिमम ऑफ डिमांड और प्रोसेस कैपेसिटी। जो मिनिमम होगा दोनों में से वो कंसिडर किया जाएगा फ्लो रेट। सो हियर इफ यू सी द कैपेसिटी, यूज लेबर कैपेसिटी, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट लीड टाइम और फ्लो रेट सेम नहीं है ना? लीड टाइम और एक्चुअली फ्लो रेट दोनों अलग अलग है, करेक्ट? हाँ, अलग अलग है, बट कुछ केस में फ्लो टाइम और लीड टाइम सेम है। फ्लो टाइम और लीड टाइम नहीं प्रवीण सेम नहीं हो सकता। कुछ केस में आपका अलग भी हो सकता है। फ्लो टाइम एंड लीड टाइम आपका तभी सेम होगा जब आपका WIP नहीं हो। सो फ्लो टाइम प्रोफेसर ने कवर नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। सो बात कहीं पे नहीं किया उसने फ्लो टाइम, ओनली एक लाइन वो पीपीटी में लिखा है, कवर नहीं किया उसने। बट वो कैसे कैलकुलेट करना है फ्लो टाइम? तो फ्लो टाइम आता है अगर WIP से आपका वो वाला केस देखा ना हमने, आई जस्ट क्विकली गो। आई थिंक वो जो हाँ जो केस है RM वाला, उसमें आपका फ्लो टाइम था ना जैसे 12 या 13 मिनट। तो वो वाला कर सकते हैं, मतलब उनका कंफ्यूजन होगा फिर अपना। नहीं, फ्लो टाइम और लीड टाइम उस केस में सेम है, बट हमेशा सेम नहीं होगा। जहाँ पे आपका बॉटल नेक WIP होगा ना, वहाँ पे आपका इस केस में आपका यू कैन टेल के फ्लो टाइम विल बी 3 + 13 एंड दैट विल आल्सो बी योर लीड टाइम, बट एवरीवेयर दैट विल नॉट बी सेम। जहाँ पे आपका WIP होगा आपका डिफर होगा। इसमें वो एग्जांपल समझ में आया कि बाद में एक किया था कि समझ में आ गया, प्रोफेसर को भी क्लियर नहीं है। आई कैन टेल यू कंफ्यूजन है तो लेकिन दोनों को लीड टाइम का तो पता चल गया, सारा ऐड करना है। फ्लो टाइम कैलकुलेट कैसे करना है? फ्लो टाइम अपन दिया नहीं, उसने क्या बोलता है ना, फ्लो टाइम आपका स्टार्टिंग से एंड तक जो लगेगा ना वही है। जैसे एक केस में ना 3, 4 + 6 जो आपका पूरा मतलब टाइम अगर एक को जाना है, 1 यूनिट को कंप्लीट प्रोसेस करना है, assuming nothing is in the work in progress, so that is your flow time. फिर वही लीड टाइम है ना? नहीं, लीड टाइम में आपका WIP, so lead time is your WIP into cycle time. लीड टाइम क्या होता है? दूसरा ऑर्डर लेने में आपका लीड जो होता है, तो इसका बैकलॉग क्लियर करने में जो टाइम लगता है, जहाँ पे आपका बॉटल नहीं। सो बिग डिफरेंस मेरे लगे फ्लो टाइम को कवर नहीं किया, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं किया। मेरे ख्याल से फ्लो टाइम ने हर शर्ट को बनाने के लिए जो एक्चुअल टाइम हर स्टेशन में लगने वाला है, सबकी अगर ऐड किया तो इट विल बी योर फ्लो टाइम। करेक्ट। डायरेक्ट लेबर कंटेंट हो गया ना, जो 26.51 था उस एग्जांपल में। हाँ, दैट इज नथिंग। नहीं, थोड़ा सा ओपन द डिफरेंस रहेगा। जहाँ पे वो बॉटल नेक है ना, एक्चुअली क्या ना, वो बॉटल नेक में मूव नहीं करेगा ना, तो बोला कितना टाइम लग रहा है, बट वो थोड़ा आपका आएगा कम, मतलब नियरली वो टाइम रहेगा, बट थोड़ा डिफर करेगा। तो सर वो जो बॉटल नेक वाले केस में टाइम मतलब WIP इनटू टाइम टेकन पर शर्ट। नहीं, WIP इनटू आपका साइकिल टाइम, उतना थियोरेटिकल वो याद रखिए। सर एक बारी वो शीट पे जाएंगे क्या?
एक क्वेश्चन था शीट पे शर्ट वाला, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। तो यहाँ पे आपका बताओ, सिंपल बताओ कल के लिए ना, डोंट अभी स्टेज में कुछ मत करो, सिंपल ये वाला याद रखो, साइकिल टाइम इज ए बॉटलनेक जो लगता है, राइट। आपका लीड टाइम जो है आपका सिंपल याद रखो, आपका WIP इनटू आपका साइकिल टाइम, दैट्स ओनली, वही याद रखो, कुछ मत करो कल, और कुछ नहीं आएगा। बाद में समझना है तो बाद में बात करनी। आई थिंक इतना काफ़ी होगा सर अभी, आई थिंक इस पर्टिकुलर उसके लिए अभी और भी आई थिंक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। और एक लास्ट रहता है, एंड जस्ट क्विकली कवरिंग दैट, आपका एक में MSc वो वाला आपका ये कवर कर लेता हूँ। सो वहाँ पे थोड़ा थ्योरी आप 15 मिनट लगेगा, आप पढ़ लेना, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग ऑन दैट, जो मैं PPT भेजा हूँ। यहाँ पे आपका है सब कुछ। मनोज जी, जो फॉर्मूला अभी आपने बोला वो आपने कहीं पे डाला हुआ है क्या नोट्स में अभी? जो साइकिल, अच्छा ठीक है। एक्सेल है ना, एक्सेल में है आपका, वो देखिए यहाँ पे भी नोट्स में मैं डाला हूँ। तो ये वाला ये हो गया। सेकंड आपका जो है फोरकास्टिंग कवर हुआ था क्लास में। सो फोरकास्टिंग का मेथड जो है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी आएगा, चेक कर लीजिएगा। सो दो मेथड आपका ये है फोरकास्टिंग, वन इज योर क्वालिटेटिव मेथड, वन इज योर क्वांटिटेटिव मेथड, राइट। सो क्वालिटेटिव मेथड में निखिल ऑन इसमें है क्या, कॉल कर रहे हैं निखिल भाई, ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, ये कोई मीटिंग इनवाइट 7:30 बजे भेजा था। मैं कॉल पे हूँ, अभी भी चल रहा है सर, ज्वाइन करा दो। अच्छा, तो मुझे ये बताओ MCQs का कर रहे हो क्या आप? नहीं आप किया हुआ है, बेटर आप उधर फोकस कीजिए, ठीक है। आपने किया हुआ वही सेम रिपीट करें। इसके बाद MCQ भी कॉल कर रहा है। हाँ, आपको बोल रहा हूँ, मतलब सेम रिपीट कर रहे हैं, अब बेटर आप MCQ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, अरे ये डिजिटल वाला कुछ कर रहे हो क्या? नहीं करता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। हम लोग डिजिटल के लिए बैठे हैं मनोज सर। डिजिटल देख, टाइम होगा तो कर लेंगे फटाफट। सिर्फ फोकस्टिंग का एक बार देख लीजिएगा। जो एक क्वालिटेटिव होता है, सो हमने जो क्लास में किया था जो था वो क्वालिटेटिव था, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव का 2 मेथड, वन इज अ टाइम सीरीज मेथड और एक है कैजुअल मेथड। थ्योरी आएगा 5 मिनट में कर देता हूँ। सो कैजुअल मेथड क्या है, वहाँ पे एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो आप मोबाइल के सेल में हो कि अगर मैं रैम 2 MB से बढ़ाता हूँ, सो व्हाट वुड बी माय, मैं 10 मिनट बाद, सॉरी कुछ नहीं सर, कैरी ऑन प्लीज। सो कितना आपका सेल बढ़ेगा, राइट। सो दैट इज अ प्रेडिक्टिव मॉडल, आप प्रेडिक्टिव करके करते हो, दैट इज कॉल्ड कैजुअल मेथड। सेकेंड वन इज कॉल्ड टाइम सीरीज मेथड। सो टाइम सीरीज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डाटा। सो थ्योरी के लिए मैं ये आप देख लीजिएगा। देन टाइम सीरीज में हॉरिजॉन्टल पैटर्न जो है हमारा क्लास में कवर हुआ है। सो यहाँ पे 2-3 मेथड आपको क्विकली एग्जाम्पल, थ्योरी आप थोड़ा देख लीजिएगा, 10 मिनट लगेगा। डिफरेंट मेथड दिया है यहाँ पे। प्रॉब्लम में जो है, आई गो टू क्विकली टू द प्रॉब्लम। मैं एक्सेल शीट में जाता हूँ, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूँगा। सो वन इज दैट हाउ टू डू द फोकस। सो फोकस कैन बी वेरियस मेथड। वो बोल रहा है जब फोकस करना है, you have to look at your trend. According to your trend, you have to choose what is the right method. Whether it's a weighted average, whether it's a moving average, that you have to select. I'll do one with moving average, what professor has done. But forecast का quality आपको कैसे देखना है? So this is the method what he mentioned. One is that कि आपका मान लीजिए आपका हर महीने का, हर हफ्ते का वीकली आपने फोरकास्ट किया. So this was your forecast, and this is the demand actually, demand against your forecast. So यहाँ पे बोलते हैं कि आपका एरर क्या है. So एरर क्या है आपका, फोरकास्ट एंड डिमांड क्या है, जो है डिफरेंस है, दैट इज योर एरर. सो ये जो प्रोफेसर ने एग्जांपल दिया है, जो एक्सेल शीट में कराया है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि फोरकास्ट माइनस डिमांड. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस आपका फोरकास्ट वाज 92 बट योर डिमांड इज 88. सो यहाँ पे बोला कि पॉजिटिव 4, बट एक्चुअली आप MCQ देखेंगे ना, वो बोलता है अगर आपका एक्चुअल ज़्यादा है सो दैट इज पॉजिटिव. सो आई थिंक जो लिखा है वो करेक्ट है अगर एग्जाम्पल आता है, बाकी यू टेक योर ओन कॉल. तो यहाँ पे एरर का जो दिखा है ना कि प्रोफेसर का एम्फेसिस था MAD, MSc एंड मैथ में, सो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. बट ये क्वेश्चन में देखा MCQ आया है तभी बोल रहा हूँ. सो ये एरर इज फोकस माइनस डिमांड, बट एक्चुअली शुड बी, अगर आपका एक्चुअल ज़्यादा है दैट शुड बी पॉजिटिव, बट यहाँ पे वो अलग किया हुआ है. तो एरर क्लियर है ना? एरर क्लियर है सर. तो एरर के बाद फिर बोलता है कि मैड आपका, उसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो दैट इज योर मैड, एंड MSc इज योर स्क्वायर ऑफ योर एरर इज योर MSc, मीन स्क्वायर एरर जो है,
and last one is the map. So map इसलिए more relevant is map. क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं खाली ये पैरामीटर देखूँ, if I don't see my focus and demand, I can't tell it's good or bad, right? Like professor has given an example. अगर आप बोलते हैं कि 2% मारुति के सेल्स डाउन है, so probably that is nothing, right? But if you tell there is a 2% deviation in your inflation forecast, that is a disaster. So that's how this map is more relevant because it gives you in the percentage term. So तीन पैरामीटर का इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मेड का आ सकता है, एमएडीए का आ सकता है, एमएससी का आ सकता है, मेप का आ सकता है. तो ये वाला सिंपल है. Any question here I can explain it. Okay. मनोज सर, एक कुछ ये था, कभी मैथ यूज करना चाहिए, कभी एमएससी यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ ये कहीं पे कुछ मेंशन तो नहीं किया था, लेकिन कुछ नहीं एक्चुअली प्रोफेसर ने लिमिटेड खाली पैरामीटर पे छोड़ दिया. बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, जब हम बीटा वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे आपका डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन उसका वेरिएंस जो निकालते हैं ना, उसके स्क्वायर करके ही निकालते हैं. तो ये आधा है, यहाँ के लिए कुछ रिलेवेंस नहीं है. बट आपको प्रैक्टिकली अगर ये आपके लिए याद रख लीजिए, एमएडी का डिफरेंस का मॉड्यूल जो है एमएडी है, एमएससी जो है स्क्वायर है आपका एरर का, मेप इज योर एमएडी डिवाइडेड बाय डिमांड. बस उतना ही याद रख लीजिए. ठीक है, थैंक यू. ये क्लियर है ना सबको ये मेथड? Yes. यस. So now I'm coming एक मेथड जो प्रोफेसर ने मूविंग एवरेज का किया था, and I saw one or two multiple question. So वहाँ पे एक तो होता है का एवरेज होता है, एक फोकस कैसे करता है, और एक वेटेड एवरेज हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपने 4 साल 5 साल का आपके पास पीछे का हिस्ट्री है, एंड यू बिलीव यू आर गोइंग टू गिव मोर वेटेज ऑन ए पर्टिकुलर रिसेंट पीरियड. आपको उसको 60% देना है, पीछे का 10% 15%. यू कैन डू योर फोरकास्ट अकॉर्डिंगली. कि मैं 4 साल का डाटा उठाया, फॉर एग्जांपल आई एम इनटू एफएमसीजी प्रोडक्ट, मैं बोलता हूँ सर्फ एक्सेल का एक एसक्यू कितना बिकेगा, मैं 4 साल का डाटा प्लॉट किया, उसके बेसिस पे वेटेज करके दे दी. So second, what is mentioned, what is a moving average? In that particular example, so what is tell कि आपका week 1, week 2, week 3. So week 1 is your most recent week, right? 0.34. Week 2 is एक हफ्ता पीछे का है, so it's 0.33, and एक हफ्ता और पीछे जाओगे तो 0.33 का वेटेज मिलेगा. तो उसके बेसिस में हमने फोरकास्ट निकाला है. So if I am doing a forecast on week 4, so I mentioned how to do it. Probably मैं मोस्ट रिसेंट वीक जो है वीक 3 का 19 into 0.34 किया, नेक्स्ट वीक का 0.33 किया, उससे पीछे वीक का 0.33. सो दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड माय फोरकास्ट वीक ऑन वीक. तो जैसे आगे मैं जाता हूँ, तो फिर जैसे कि मैं फिफ्थ वीक में गया, तो मेरा जो पीछे का 3 हफ्ते का वो वेटेज लेके गया. सो दिस वेट इज जजमेंटल, नथिंग साइंटिफिक, यू हैव टू अप्लाई योर ओन जजमेंट. बट धीरे धीरे आपको इसको कैलकुलेट करके यू कैन अप्लाई दोज मेथड्स on your quality of your forecast, and you can see whether this weightage is good or bad. For example, यहाँ पे मैं so all these 3 has to be equal to 1. अगर मैं यहाँ पे 0.6 करूँ, यहाँ पे 0.2 करूँ और यहाँ पे 0.2 करूँ, so probably my quality of forecast still 17% में रहता है. But मैं इसके basis पे I can always change करके मैं देख सकता हूँ, and I can take the most suitable forecast. ये clear है क्या मूविंग एवरेज का? मनोज सर, इफ आई एम करेक्ट, दिस इज वेटेड मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पे आपने वेट्स कंसीडर किया है. नॉर्मल एवरेज लेंगे, हाँ नॉर्मल एवरेज लेंगे तो मूविंग एवरेज है, करेक्ट ना? राइट, नॉर्मल आपका एवरेज लेंगे तो मूविंग. अगर मैं इसको 0.33 कर दूँ सबका, तो प्रॉब्ली मूविंग एवरेज इक्वली कर दूँ तो मूविंग एवरेज. बट सर अगर आप एक मैं देखा था अभी ग्रुप में किसने पोस्ट किया था ना, दिस इज वेरी रेलिवेंट. आप देखेंगे यहाँ पे ये स्पेशली जो 5 पेज का वर्ड है ना, डॉक्यूमेंट है, काफी क्वेश्चन इज कनेक्टिंग. अगर 10 मिनट लगेगा जस्ट गो थ्रू दैट. ये अभी कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं, बट पहला सिंपल पे आप देख सकते हैं. ये आंसर दिए हुए हैं क्या वो उसमें? हाँ, आंसर दिए हुए हैं. तो मैं बोला एक बार देख ले. यहाँ पे भी मूविंग एवरेज का जो अभी हमने प्रॉब्लम किया ना, एक मूविंग एवरेज का दिया हुआ है, वेटेड मूविंग एवरेज का, उसका मैं आंसर वो सिंपल एवरेज है. वही मैं आपको बोला था मनोज सर कि वो सिंपल एवरेज लिया है लास्ट 4 मंथ्स का. सो दैट इज एक्चुअली मूविंग एवरेज. जो एग्जांपल प्रोफेसर ने लिया है दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज. ये भी क्या है, ये भी एक वेटेड मूविंग एवरेज भी है क्वेश्चन में. दोनों है. मैं दोनों का रिजल्ट भी पोस्ट किया हूँ ग्रुप में. बट सर अच्छा ओके, द ओनली थिंग इज इसमें वर्किंग नहीं एक्सप्लेन्ड कि वो वहाँ तक वो आंसर उन्होंने चूज़ कैसे किया, राइट?
बिकॉज ये तो सिर्फ दिस इज जस्ट एक MCQ. वर्किंग ग्रुप में पोस्ट किया, जैसे ये वाला एग्जांपल किया ना, मैं अभी कर रहा था, उसको देख रहा था. हाँ. तो मैं यहाँ पे किया भी हुआ. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमने किया, सो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेटेड एवरेज फोरकास्टिंग यूजिंग वेट ऑफ 0.5 टू द मोस्ट रिसेंट पीरियड, 0.4 फॉर द नेक्स्ट रिसेंट पीरियड एंड 0.3 फॉर द नेक्स्ट रिसेंट पीरियड. सो तीनों का लेके करने के लिए तो 6 हफ्ते का दिया हुआ है. सो व्हाट आई हैव डन हियर, 6 हफ्ते का फोरकास्ट प्लॉट किया. सो हियर आई हैव टेकन के मूविंग एवरेज में कितना मैं रेशियो लेना है, खाली मूविंग एवरेज दिया और दूसरे का मैं वोल्टेज लेके ऊपर लगा के ना 0.45, 0.4, 0.3 का. सो यहाँ पे लेके 48.6 आया. सो देखो आंसर हियर इज 48.6. तो दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एक कर लीजिएगा. काफी थ्योरी भी है, मुझे लगता है कि रिलेवेंट है. नहीं, सिंपल ये है, प्रॉब्लम है यू विल गेट द आंसर्स इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सर ये वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर कर दीजिएगा सर, जो आपने बनाया है, जो आपने सॉल्व किया है. एक्सेल अलाउड होगा क्या करें? नहीं, एक्सेल नहीं, मैनुअल पे आप एक्सेल नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर है सर. दैट्स द थिंग कि सिर्फ कैलकुलेटर है. तो हाउ डू वी आंसर दिस क्वेश्चन? केवल आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं ना. क्या 3 है ना, ये कैलकुलेटर में हो सकता है. मुझे लगा हुआ ऐसा 3-4 टाइम सीरीज ही देगा, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा कुछ. ये वाला आया हुआ है. आई थिंक ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है एक्चुअली. सो आई थिंक कैलकुलेटर में अब क्या है, इसका तीनों को तो मारना है. इसको आप एक करेंगे, लास्ट 3 पकड़ेंगे, आपको फिर ऐसे मल्टीप्लाई मारना है. बराबर. ये हो सकता है. दिस इज कैन बी डन इन कैलकुलेटर. उसका एक ही MCQ शीट है ना, या कोई और भी है? अरे दो शीट है टीओ के लिए. अच्छा. हाँ, तो दोनों में आधे आधे रिलेवेंट लगते हैं मेरे को, बाकी के काफी कुछ मतलब नहीं भी है. तो ठीक है, देख लीजिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तीनों शीट देखेंगे 1 घंटा लगेगा. नॉट टेक मोर देन 1 करेक्ट. बराबर. अपने ग्रुप पे तीनों है क्या? पुणे ग्रुप पे तीनों है. पुणे के ग्रुप में भी हमने फिर से शेयर किया है. ये मांगा था. एक डीटी का है ना, और 2 एओई का, राइट? हाँ, एक डीटी का, मैं डीटी का देखा नहीं, मैं अभी देखूंगा. मैंने भी देखा नहीं है. डीटी कुछ कवर कर सकते क्या मनोज सर? क्योंकि वही समझ नहीं आ रहा कि